Okay, so now we move towards linguistics, and in the previous lecture we have started phonology. Today we will complete the phonology section and then move towards morphology. In phonology section, we today will discuss the contraction, assimilation, and elision. What happens is all these techniques are used for the co-articulatory effects in the language. What do we mean by co-articulatory effects? We mean when one sound mixes with some other sound, and then what type of effects are created. When there is a mixing of two sounds or more than two sounds, the ending result is something that we call as co-articulatory effect. Okay, it has a different sort of effects. The first one is contraction. In contraction, basically what does is that we use the technique of elision, and it is the contraction is that sort of elision that is what you can say universally acknowledged, sort of, that the language purists, those who do not tolerate any sort of problem with language at all, even they accept this sort of elision. So contraction basically represents a special form of elision, one that involves fixed grammatical forms and which has become so established that even language purists don't object to its use in spoken language. If you can look at the examples, you see here we have he is, and then we have his, where we have this comma over there, apostrophe. What happens is कि हमने इन दो लफ्ज़ों को जोड़कर एक बना दिया, इसमें से आई को हमने ओमिट कर दिया, इज़ के आई को हमने ओमिट कर दिया और ये हिज बन गया. ठीक है, अब इसको जब हम प्रोनाउंस करेंगे तो तब वो ही इज़ है और ये है हीज़. ओके, थोड़ा स्पीडली उसको ले जाएंगे. ये जो चीज़ है जिसमें आप कुछ जो साउंड्स हैं उनको ओमिट कर देते हैं, कुछ अल्फ़ाबेट्स को ओमिट कर देते हैं, और जबकि उससे सेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको हम बोलते हैं इलीजन बेसिकली. और जब ये इतनी ये वाली जो टाइप है जो कि इतनी एक्नॉलेज्ड है, इसको हम कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे. इसी तरह आगे आप देख रहे हैं शीज़ से शीज़ बन गया, व्हाट्स बन गया, हैज़ंट हैवंट, गिव अस गिव्स या गिव मी जो है उसका गिमी बन जाता है, आइल, दे वुड, लेट्स, डोंट. ठीक है, इस तरह के जो वर्ड्स बनते हैं ये सारे के सारे कॉन्ट्रैक्शन से बन रहे हैं. Then the second thing is assimilation. Assimilation is a process whereby adjacent consonants become more similar to each other in manner or place of articulation in order to facilitate pronunciation. What happens is that two words, when they are spoken together, they according to the feasibility of the pronunciation, they sometimes go through a little changes. There are two types of assimilation. First one is anticipatory, that is also called regressive assimilation, and second one is preservative, which is also known as progressive assimilation. In anticipatory assimilation, we have a consonant which facilitates the pronunciation of the following consonant, like this. If you can see the examples, it was hot pot, तो उसमें देखेंगे आपके सेकंड वन जो है वो सेम रहता है. तो सम ये सॉरी इन्होंने हॉट पॉट ये आगे लिख दिया, इसको हॉट पॉट जो है वो टी उसका ओमिट हो जाता है. ठीक है, इसी तरह गिव मी को अगर आप देखें, मी जो फॉलोइंग है वो बिल्कुल अपनी असल शक्ल में रहेगा, जो फर्स्ट वन है वो अपने आप को ऑल्टर करेगा और उससे बन गया गिमी. इसी तरह 10 पॉइंट्स 10 पॉइंट्स. ठीक है, पॉइंट सेम है, 10 को ऑल्टर किया. इसी तरह हैमबैग है एंड अबाउट यू. इनकी प्रोनाउंसिएशन जो नेटिव प्रोनाउंसिएशन है उसमें ये चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन अब जो है वो काफ़ी हद तक इन चीज़ों को राइटिंग में भी यूज़ है. राइटिंग में कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा है, असिमिलेशन वगैरह जो है वो राइटिंग में इतनी ज़्यादा नहीं है, इसका ज़्यादा ताल्लुक़ है स्पोकन से. Okay, then we have preservative assimilation. In preservative assimilation, basically what happens is that the later sound is changed and the earlier sound, the first one, remains same. We have here horses. Horse is same. The last one, sir, sound changes into is. Okay, the sound changes, horses. Okay, इसी तरह dog है, डॉग एज इट इज़ रहेगा. जब हम डॉग्स करते हैं तो उसमें एस है, लेकिन एस को हम प्रोनाउंस करेंगे ज में. ठीक है, तो जो लेटर वन है उसकी साउंड चेंज होगी तो वो डॉग्स हो गया. इसी तरह देयर्स में भी यही हुआ. यू एंड मी, इसमें यू देखें सेम, ये समटाइम्स मिड में भी आ रहा होता है. ठीक है, यू जो है
वो अपनी असल शक्ल में है। उसके बाद एंड को आगे से आपने चेंज किया, यू एंड मी, ओके। इसी तरह आई कैन गो को भी आई कैन गो कर दिया, कैन वो के वाला निकाल लिया, ठीक है। इसी तरह इट इज़ जो है उसको हम इड्स कर देते हैं, हीज़ कर देते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं वो क्या हो जाएंगी, प्रिजर्वेटिव असिमिलेशन है। देन वी हैव एलिजन। एलिजन जो है वो इसका एक आपको कि कॉमन जो फिनोमेना है उसको हम बोलते हैं द ओमिशन ऑफ अ साउंड सेगमेंट और फोनीम फ्रॉम सम वर्ड इज़ टेक्निकली डिस्क्राइब्ड एज एलिजन। जो भी हम पीछे करके आए ना, कुछ वर्ड्स या कुछ साउंड सेगमेंट्स, वर्ड्स नहीं, अल्फ़ाबेट्स या साउंड सेगमेंट्स जिनको हम ओमिट कर देते हैं इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द प्रोनाउंसिएशन, उस चीज़ को हम बोलते हैं एलिजन। जैसे इसमें इसने आपको एग्जांपल दी, इट इज़ को कर दिया टिस। नेवर को देखें आप तो नेवर वो अपॉस्ट्रोफी लगाई, ई ख़त्म कर दिया। इसी तरह एवर को कर लिया। इसी तरह नीचे अगर आप देखें ही मस्ट बी, इसको जब आप नेटिव इंग्लिश की बात करते हैं और फ्लुएंटली बात कर रहे होते हैं तो यू से ही मस्ट बी, ओके। So all these things refer to elision. In this way, elision is a process where we drop one or more phoneme in order to simplify pronunciation, in order to facilitate pronunciation. It may occur for both vowel and consonant phonemes. इसमें ये नहीं है कि vowel जो है उसको omit करना है या consonant को करना है, it depends, ठीक है। जैसे अगर आपने इसमें देखा, जो ये वाली आपकी एग्जांपल थी he must be वाली, इसमें आप देखें he must be, इसमें हमने ट को, जो हमारी consonant साउंड है, उसको हमने रिमूव किया है। जबकि ऊपर अगर आप देखेंगे जैसे नेवर है तो इसमें हमने ई जो रिमूव किया था वो वाउल था। सो इसकी कोई कंपल्शन नहीं है। देन आ जाता है जी, इन वाउल ड्रॉपिंग देयर हैपन्स द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन टू द पॉइंट दैट द वाउल्स आर नो लॉन्गर प्रोनाउंस्ड एज इन पुलिस लेक्चर। जैसे यहाँ पे लेक्चर में अगर आप देखते हैं तो जो यू है उसको हम नहीं कर रहे हैं। इसी तरह पुलिस है तो उसमें भी हम उसको जो लेटर वन है ई, उसको हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं, उसको हम ओमिट कर देते हैं। Now we move towards morphology. What do we mean by morphology? Morphology is basically the composition of words, the collection, the structure of the words together that gives us a meaningful sentence. So according to Stuart C. Poole, the composition of words is called morphology, and according to Frank Fulmer, morphology is essentially the grammar of words, the relations between take and took, dog and dogs. सो मॉर्फोलॉजी जो है वो वर्ड्स के ऊपर आएगी, उसका फोकस जो है वो वर्ड पर है कि वर्ड्स की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, वर्ड्स को किस तरह ऑल्टर किया जाता है, अगर ऑल्टर किया जाता है तो उसको ऑल्टर करने से क्या होता है, मीनिंग्स किस तरह अफेक्ट होते हैं, लैंग्वेज किस तरह अफेक्ट होती है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो हम मॉर्फोलॉजी में डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली अगर हम इसको सम अप करें तो हम ये कह सकते हैं कि मॉर्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ पैटर्न्स ऑफ वर्ड फॉर्म्स, या मॉर्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ वर्ड फॉर्म्स, ओके। इफ़ वी टॉक अबाउट मॉर्फोलॉजी को जो है वो हम फर्दर डिवाइड करते हैं। उसका जो बेसिक हमारे पास लिंग्विस्टिक यूनिट है वर्ड्स का, वो हमारे पास है मॉर्फीम, ओके। मॉर्फीम जो है उसको मिनिमल लिंग्विस्टिक यूनिट हम कहते हैं, और इसके लिए जो दूसरे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं वो हैं जी ग्लॉसेम, कैनीम एंड प्लेरेम, ओके। इफ़ वी टॉक अबाउट मॉर्फीम्स तो उनकी हम क्लासिफिकेशन करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में। जैसे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं फ्री मॉर्फीम्स और बाउंड मॉर्फीम्स में, फिर आगे फ्री मॉर्फीम्स की 2 टाइप्स हैं, इसी तरह बाउंड मॉर्फीम्स की भी 2 टाइप्स हैं, उनको हम चेक करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इनको देखें तो वो सी दैट ऑल द एलिमेंट्स दैट हैव लेक्सिकल और फंक्शनल मीनिंग्स आर कॉल्ड मॉर्फीम्स। वो तमाम एलिमेंट्स जिनका कोई ना कोई लेक्सिकल या फंक्शनल मीनिंग होगा उनको हम क्या कहेंगे, मॉर्फीम कहेंगे। सो द फंक्शनल आइटम्स, फॉर एग्जांपल आर्टिकल, प्रोपोजिशन और कंजंक्शन आर पर्टिकुलरली कॉल्ड प्लेरीम। इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं जो फंक्शनल आइटम्स हैं उनके लिए। सच फंक्शनल आइटम्स डोंट हैव देयर इंडिपेंडेंट मीनिंग बट द प्ले सिंटैक्टिक रोल्स इन अ सेंटेंस। इसकी जाके हम आगे भी कैटेगराइजेशन की बात करेंगे।
इसी तरह जो एक मॉर्फीम है वो मोनोसिलेबिक भी हो सकता है, डाइसिलेबिक भी हो सकता है और पॉलीसिलेबिक भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि उसकी लेंथ कितनी होगी। सो अभी हमने देखा मॉर्फीम्स की जो है वो हमने बात की कि दो मेजर टाइप्स हैं, फ्री मॉर्फीम्स एंड बाउंड मॉर्फीम्स। इफ़ वी टॉक अबाउट फ्री मॉर्फीम्स, तो फ्री मॉर्फीम्स हम कहते हैं ऐसे मॉर्फीम्स को दैट आर इन देमसेल्व्स द डिस्टिंक्ट यूनिट्स एंड दे हैव नो प्रीफिक्स और सफिक्स अटैच्ड विद देम, यानी जो इन आइसोलेशन अपने आप में कंप्लीट वर्ड्स हैं जिनका कंप्लीट मीनिंग है, उनके साथ किसी किस्म का कोई प्रीफिक्स या सफिक्स अटैच्ड नहीं होगा, ऐसे वर्ड्स को हम बोलते हैं फ्री मॉर्फीम्स। देन आ जाते हैं बाउंड मॉर्फीम्स। बाउंड मॉर्फीम्स वो हैं जो कि बाउंड हैं, जो कि अटैच्ड हैं किसी और चीज़ के साथ थ्रू प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस, या समटाइम्स दोनों लग जाते हैं। जैसे यहाँ पे उसने आपको एग्जांपल दी, ऊपर वाले आप देखें फ्री मॉर्फीम्स में क्या होगा, बुक है, कम है, गो है, ब्यूटी है, ट्राई है, एंटर है, ठीक है। इसी तरह अगर आप यहाँ पर देखते हैं बाउंड मॉर्फीम में, तो आप देखेंगे कि उन्हीं वर्ड्स के साथ कुछ प्रीफिक्सेस या सफिक्सेस लगा के उनको चेंज किया। जैसे कि बुक यहाँ पर बन गया बुकिंग, ठीक है। तो जब हम सिर्फ बुक की बात करेंगे तो वो फ्री मॉर्फीम है, वो इंडिपेंडेंट है। जब हम बुकिंग की बात करेंगे तो वो फिर बाउंड मॉर्फीम हो गया, क्योंकि अब इसके साथ आईएनजी का सफिक्स लग गया है। इसी तरह कम से कमिंग हो गया, गो से देखें, गो के साथ दोनों यूज़ हो गए, उसके साथ प्रीफिक्स भी लगा आउट और फिर उसके बाद आईएनजी का सफिक्स भी लगा, तो वो बन गया आउट गोइंग। इसी तरह ब्यूटी से ब्यूटीफुल बन गया, एंटर से एंट्री बन जाता। ओके, देन आ जाता है हमारे पास टाइप्स की जो हम बात कर रहे थे, फ्री मॉर्फीम्स और बाउंड मॉर्फीम्स की हमने बात कर ली। अब फ्री मॉर्फीम्स की आगे हमारे पास आती हैं दो टाइप्स, जो कि हैं जी लेक्सिकल मॉर्फीम्स और फंक्शनल मॉर्फीम्स। लेक्सिकल मॉर्फीम्स की अगर हम बात करें तो लेक्सिकल मॉर्फीम्स आर द कॉन्टेंट वर्ड्स, द वर्ड्स दैट हैव देयर ओन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यानी वो वर्ड्स, आप ये कह सकते हैं कि फ्री मॉर्फीम्स वो वर्ड्स हैं जिनके साथ कोई प्रीफिक्स या सफिक्स नहीं लगा हुआ होता और वो आइसोलेशन में पूरा वर्ड होते हैं। अब जब हम आगे फ्री मॉर्फीम्स की टाइप्स में आएंगे तो उसमें जो लेक्सिकल मॉर्फीम है, ये वो मॉर्फीम्स हैं जो कि इन आइसोलेशन एक प्रॉपर मीनिंग भी रखते हैं, ठीक हो गया, जिनकी एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, जिनको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है अपने मीनिंग को प्रूव करने के लिए, ठीक। जैसे कि हो गया नाउन्स हैं हमारे, वर्ब्स हैं और हमारे एडजेक्टिव्स हैं, जैसे बुक है, जंप है, ब्यूटी है, ये इन इटसेल्फ कंप्लीट मॉर्फीम्स है। दूसरे हैं फंक्शनल मॉर्फीम्स। ये वो मॉर्फीम्स हैं जिनका अगर हम इन आइसोलेशन बात करें तो उनके कोई मानी नहीं बनते, उनकी कोई सेंस नहीं बनती, लेकिन सेंटेंसेस के अंदर जब वर्ड्स जुड़ते हैं तो इन फंक्शनल मॉर्फीम्स के बगैर सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट होना नामुमकिन है। सो इनको हम ग्रामेटिकल मॉर्फीम्स भी कहते हैं, क्योंकि ये ग्रामेटिकल काम करते हैं, ये मीनिंग देते हैं हमारे सेंटेंसेस को। दे डोंट हैव देयर इंडिपेंडेंट मीनिंग्स बट दे गिव देयर मीनिंग्स इन अ सेंटेंस। और इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, आर्टिकल्स हैं, प्रेपोजिशंस हैं, प्रोनाउंस हैं एंड कंजंक्शंस हैं। ओके जी, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ फ्री मॉर्फीम्स। ओके, in a language always possibility of entering new lexical morphemes, there is always a possibility, so these are called open class of words. On the other hand functional morphemes are fixed and are predetermined, ठीक है। जो हमारे lexical हैं वो open हैं, उनमें मज़ीद words add हो सकते हैं जितने मर्जी होते जाएं, लेकिन जो फंक्शनल मॉर्फीम्स हैं वो फिक्स्ड हैं, प्री डिटर्मिन्ड हैं। यानी हमारे आर्टिकल की अगर हम बात करते हैं तो हमारे टोटल 3 ही आर्टिकल्स हैं जो कि यूज़ होते हैं। इसी तरह अगर हम प्रेपोजिशन की बात करते हैं तो वो भी लिमिटेड हैं, प्रोनाउंस हैं तो वो भी लिमिटेड हैं, इसी तरह कंजंक्शंस हमारे लिमिटेड हैं, ठीक है। तो इनमें न्यू नहीं ऐड हो सकते हैं, ये फिक्स्ड हैं। They cannot be modified or twisted, so these are called closed class of words. इनको हम modify नहीं कर सकते, इनको हम twist नहीं कर सकते, इसलिए ये closed क्लास भी कहलाते हैं। जबकि जो लेक्सिकल मॉर्फीम्स हैं उनको मॉडिफाई किया जा सकता है, उनके साथ सफिक्सेस वगैरह लगा के, तो वो बाउंड मॉर्फीम्स वाली कैटेगरी में चले जाएंगे। जैसे बुक से बुकिश बन गया, जंप से जंपिंग बन गया, ब्यूटी से ब्यूटीफुल बन गया, इस तरह से, ठीक हो गया। ओके,
देन आ जाता है जी हमारे पास नेक्स्ट टाइप हमने करनी है बाउंड मॉर्फीम्स की। बाउंड मॉर्फीम्स में हमारे पास आगे दो कैटेगरीज हैं, जिनमें है जी इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम एंड देन डेरिवेशनल मॉर्फीम। इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम और डेरिवेशनल मॉर्फीम की अगर हम बात करें तो उनको हम 4 बेसिस के ऊपर डिफ्रेंशिएट करते हैं। इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम क्या है? इसमें क्या होता है इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम में, द सफिक्स इज़ यूज्ड एज अ टर्मिनल, यानी एंड पे सफिक्स यूज़ किया जाता है, उसके साथ बात ख़त्म हो जाती है। जैसे बॉय के साथ आ गया एस तो वो बन गया बॉयज़, कम से कमिंग, रिच से रिचर। अब यहाँ पे एस है बॉय के साथ, या कम के साथ आईएनजी है, या रिच के साथ रिचर है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये एंड पर टर्मिनल पॉइंट्स पर लगे हैं सफिक्सेस, और इस तरह हमने कह दिया कि इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स में सफिक्स का है टर्मिनल है। डेरिवेशनल में जो हम बात करते हैं तो उसमें क्या है, देयर इज़ अ फिक्सेशन प्रोसेस, बोथ प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस में बी एडेड, यानी प्रीफिक्स भी लग सकता है सफिक्स भी। आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा इन्फ्लेक्शनल है उसमें सिर्फ सफिक्स लगता है, एंड पर लगता है, जबकि जो हमारा डेरिवेशनल है उसमें दोनों लग सकते हैं। जैसे कम के साथ इन भी लग सकता है तो वो इनकम बन जाएगा, कम के साथ आईएनजी भी लग सकता है तो वो कमिंग बन जाएगा, ठीक है। कम के साथ बी लग गया वो बिकम बन गया, आगे आईएनजी भी लगा दें बिकमिंग बन जाएगा, ठीक हो गया। देन है जी यहाँ पे है हेयर सफिक्स अकर्स ओनली वन, नॉट ट्वाइस नॉट थ्राइस, यानी सफिक्स लगना है, एक ही लगना है, एंड पर लगना है, बार बार नहीं लग सकता। जबकि यहाँ पे क्या है, चूंकि यहाँ पे प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों लग सकते हैं तो वो 2-3 दफ़ा भी लग सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कम की, कम के साथ हम लोग लगा लेते हैं बी, शुरू में लगा लिया तो वो बन गया बिकम, ठीक है। उसके साथ एंड पे लगाया हमने आईएनजी तो बन गया बिकमिंग, एक प्रीफिक्स लगा लिया एक सफिक्स लगा लिया। चलें यहाँ तक तो बात हो गई। अब हमने बात की कि इसमें मल्टीपल टाइम्स आप प्रीफिक्सेस या सफिक्सेस ऐड कर सकते हो। इसी तरह अब हमने बात की बिकम, हमने कर लिया, उसके आगे अब हमने लगा लिया आईएनजी लगाया वो बन गया बिकमिंग, ठीक है। आगे हम एक और लगा लेते हैं सफिक्स ly, उससे बन जाएगा बिकमिंगली, ठीक है। कंप्लीट हुआ, लेकिन अब क्या है, 2 सफिक्स यूज़ हो गए। अगली वाली जो एग्जांपल है नीचे वाली इसको अगर आप देखें, इसी तरह अगर आप शुरू में अन भी लगा लेते हैं तो फिर बन जाएगा अनबिकमिंगली। सो मेन जो हमारा वर्ड था वो क्या था, मॉर्फीम जो था हमारा वो कम था, उसके साथ हमने अब 2 प्रीफिक्स लगा लिए अन और बी, और 2 हमने उसके साथ सफिक्स लगा लिए इंग और ली, और वो फिर भी एक कंप्लीट वर्ड बन गया। इसी तरह ब्यूटी है तो ब्यूटी से ब्यूटीफुल और फिर आगे ली, ब्यूटीफुली। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं ओपन सिस्टम। जबकि जो हमारा इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम है उसमें सिर्फ एक सफिक्स लग सकता है और उसके साथ बात ख़त्म, तो फिर इसको हम बोलते हैं क्लोज सिस्टम। जैसे गो के साथ हमने लगाया आईएनजी गोइंग, कम के साथ आईएनजी कमिंग, ठीक हो गया, बात ख़त्म। देन आ जाता है जी ग्रामेटिकल कैटेगरी रिमेन सेम। इसमें जब हम ऐड करते हैं इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स जब बनते हैं तो उसमें ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज नहीं होती। जैसे कि आप देख रहे हैं गो से बन गया गोज़, वेंट, गोइंग, तीनों रहे वर्ब ही, ठीक है। गो भी वर्ब है, गोज़ भी वर्ब है, वेंट भी वर्ब है, गोइंग भी वर्ब है, तो ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज नहीं हुई। जबकि अगर आप दूसरी तरफ डेरिवेशनल की तरफ आते हैं तो वहाँ पर ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज हो जाती है। जैसे कि गो से हो गया गोअर, और या नेक्स्ट हो गया फिर गेट, तो गो जो है वो वर्ब है, गोअर नाउन है, गेट नाउन है, तो उसमें कैटेगरी चेंज हो गई, ठीक हो गया। अच्छा जी, देन हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। उसमें हमारे पास मॉर्फीम्स की एक और टाइप आ जाती है जिसको हम बोलते हैं रेगुलर मॉर्फीम्स या इरेगुलर मॉर्फीम्स, या इसको हम रेगुलर वर्ब्स रेगुलर फॉर्म्स और इरेगुलर फॉर्म्स भी कहते हैं। इनको हम फर्दर डिवाइड करते हैं 3 सेक्शंस में, जिसमें हमारे पास रेगुलर वर्ब्स, इरेगुलर वर्ब्स हैं, रेगुलर नाउन्स, इरेगुलर नाउन्स, देन रेगुलर एडजेक्टिव्स और इरेगुलर एडजेक्टिव्स। रेगुलर वर्ब्स कौन से होंगे, जिनमें फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज करने के लिए एक ही रेगुलर पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। यानी नॉर्मली क्या होता है कि सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए जो मेन फर्स्ट वर्ब फॉर्म ऑफ वर्ब होता है उसके साथ ईडी लगा दिया जाता है। जैसे है प्ले से प्लेड बन गया, जंप से जंप्ड बन गया, आस्क से आस्क्ड बन गया। जबकि इरेगुलर जो है उसमें ये वाला कोई सेट पैटर्न फॉलो नहीं किया जाता, उसमें डिफरेंट वर्ड बन जाता है। जैसे आपने देखा मेक से मेड बन गया, कम से केम बन गया, गो से वेंट बना, गॉन बना, ओके।
देन इसी तरह हमारे पास आ जाते हैं नाउन्स। नाउन्स में भी क्या है, एक हमारे पास है रेगुलर नाउन्स। रेगुलर नाउन्स में क्या है कि जब हमने नाउन्स को प्लूरलाइज करना होता है तो रेगुलर नाउन्स में क्या होता है कि बॉय से बन गया बॉयज़, एस लगाया बात खत्म, बॉयज़। गर्ल के साथ एस लगाया गर्ल्स, फैन के साथ लगाया फैंस। लेकिन इर्रेगुलर नाउन्स जो हैं उनको प्लूरल करने के लिए सिर्फ आप एस लगा के प्लूरलाइज नहीं कर सकते, उनको आपको वर्ड को, जो रूट वर्ड है उसको चेंज करना पड़ता है। जैसे कि हो गया मैन से मैन, फुट से फीट, स्काई से स्काइज। देन है जी एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स में फिर हमारे जो रेगुलर एडजेक्टिव्स हैं, जब हम डिग्री ऑफ एडजेक्टिव की बात करते हैं तो डिफरेंट डिग्री में जाने के लिए उसकी जो कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री में जाने के लिए रेगुलर एडजेक्टिव्स के साथ क्या किया जाता है कि जो हमारा रूट वर्ड है उसमें कंपैरेटिव डिग्री के लिए हम ER लगा देते हैं एंड पे, और सुपरलेटिव डिग्री के लिए हम EST लगा देते हैं। जैसे क्लियर से क्लियरर, क्लियरेस्ट। इसी तरह फेयर से फेयरर और फेयरेस्ट। जबकि इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स में क्या होता है, ऐसा नहीं किया जाता, बल्कि रूट वर्ड के साथ वर्ड्स लगाए जाते हैं, जैसे मच, मोर और मोस्ट। बैड, वर्स, वर्स्ट बन गया, चेंज हो गया ना, मच से मोर, मोर से मोस्ट। बैड जो है वो चेंज हो गया वर्स में, देन वर्स्ट। गुड चेंज हो गया बेटर से, देन बेस्ट में। सो उसकी एक सेट पैटर्न नहीं है। तो ऐसे जो एडजेक्टिव्स होंगे हम उनको इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स कहते हैं। ओके जी, दैट्स इट फॉर लिंग्विस्टिक्स फॉर टुडे।